مومن خان سے بات کرتے ہیں. جی ہیلو, جی السلام علیکم جی غالب بھائی. کیا حال ہے جی, کیسے ہو آپ؟ جی بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر ہے. لاسٹ ٹائم آپ سے بات ہو رہی تھی, بات ہی کٹ گئی تھی اس میں. اچھا, ابھی کچھ دیر پہلے آپ سے کچھ صاحب بات کر رہے تھے جس میں آپ نے رسول اللہ کی جو شادی شدہ زندگی کا ذکر ہو رہا تھا, حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی عمر جو تھی وہ 19 سال تھی. ٹھیک ہے, تو اصل میں آپ ان سے یہ پوچھتے کہ آپ اس کا مطلب اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ یہ بات جانتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے, اس لیے وہ ان کو 19 سال کی بتا کے پیش کرتے ہیں. نہیں وہ تو یہ پیش کرتے ہیں نا, رسول اللہ نے تو کوئی نہیں پیش کیا 19 سال کی بنا کے. رسول اللہ کے حساب میں تو وہ تھی 6 سال کی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو آپ ان کو 19 سال کی بنا کے پیش کرتے ہیں, تو آپ ان سے پوچھیں کہ آپ اس بات کو پھر مانتے ہیں کہ رسول اللہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کو غلط سمجھتے تھے. ان کے منہ سے نکلے تو صحیح نا کہ ہاں غلط سمجھتے تھے. پھر وہ پتہ نہیں کیا کلا بازی ماریں گے. خیر ہاں دیکھ لیں گے, پوچھ لیں گے نیکسٹ ٹائم, یہ بھی بات کر کے ہاں ان سے دیکھتے ہیں کیا پوچھیں کہ اس کرتے کا ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ اس بات کو جانتے تھے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا غلط ہے. تو اگر وہ کہیں کہ ہاں غلط ہے, تو پھر اس کے بعد ان کے سامنے کتابیں کھول کے رکھ دیں. وہ پھر بھی نہیں مانتے نا. وہ حدیث کے اوپر کلا بازیاں آپ دیکھ نہیں رہے ان کی کتنے عرصے سے ہمارے سامنے ہی ہیں ساری. کیا کتنی کلا بازیاں حدیث پہ لگتی ہیں. حدیث کے کلا اوپر تو بازی نہیں بس یہ لگانی پاگل چاہیے, ہی ہو مجھے جاتے اس سے ہیں. بڑے تکلیف ہوتی ہے جب یہ کلا بازیاں لگاتے ہیں. کلا بازیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو بات ہے نا. پھر وہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. بندے کو باندر بننا ہی پڑتا ہے, کلا بازیاں لگانی پڑتی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے سارا. ٹھیک ہے, کوئی انسان اسلام کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. الٹا لٹک کے کلا بازیاں لگا کے دم کے اوپر کھڑے ہو کے تماشے کر کے کھانا پڑتا ہے, پھر ہوتا ہے. ویسے نہیں ہو سکتا اسلام ڈیفینڈ, یہ ہوا ہی نہیں ہے آج تک کسی سے بھی. ٹھیک ہے. اچھا غالب بھائی, ایک میں نے کچھ تھوڑی دیر ہوئی تھی, میں نے ایک بات پڑھی تھی کہ رسول اللہ کی جو ولادت ہے اس کے اوپر بھی کچھ مسائل ہیں کہ وہ 2 سال کی ان کی پریگننسی رہی ہے. جو یہ بات ٹھیک ہے یا یہ بس ویسے اڑائی ہوئی باتیں ہیں؟ یہ اڑائی ہوئی بات نہیں ہے. دیکھیں بات ہمیں حضرت محمد پہ نا, یہ آج کل کچھ لوگوں نے ان باتوں کو پاپولرائز کر دیا ہے. اچھا, جن کو اسلام پہ تنقید کرنے کا, اور انہیں اسلام پہ ویلڈ تنقید نہیں کرنی. ان کا کام ہے بس اسلام کے اوپر ادھر جائیں کہ بس اسے وشس دکھائیں بہت زیادہ. تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس حضرت محمد کے کیریکٹر کے اوپر بات کریں. اور دوسری بات ہے, میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا. فرض کرو کہ کوئی آدمی اس طرح سے پیدا بھی ہوا ہو کہ اس کی ماں کا کسی کے ساتھ افیئر رہا اور وہ پیدا ہو گیا, تو میں اس کو اس بات کا تانا کبھی ماروں گا ہی نہیں, کیونکہ اپنے پیدا ہونے میں اس کا قصور کیا ہے. حضرت محمد کو ہم کرٹیسائز کریں گے ہمیشہ ان باتوں کے لیے جن کے اوپر ان کا کنٹرول تھا. اور اس طرح کا یہ بات اگر سچی بھی ہو, ویسے تو یہ سچی نہیں ہے, اگر یہ سچی بھی ہو تو اس کو یوز کرنے والا آدمی جو ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے نا کہ وہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ شیعہ حضرات جو ہے نا, وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جو پوری کی پوری لینیج ہے وہ بڑی کی بڑی پاک و صاف چلتی آ رہی ہے نا, تو پھر اس کے اوپر سوال تو کھڑے ہوں گے نا. نہیں, اصل میں کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں ہے. کہیں ستہ میں, تاریخ تبری میں ایسا کچھ کہیں نہیں لکھا. مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ کس کتاب میں یہ لکھا ہے. کوئی آج تک مجھے ریفرنس بھی نظر نہیں آیا کوئی. اس کے بارے میں وہ 2 باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو عمر تھی نا رسول اللہ کی, وہ حضرت جو ان کے چچا حضرت حمزہ ان سے 2 سال ہی کم تھی یا 2-3 سال ہی کم تھی. حضرت حمزہ سے 3 سال کم تھی, اور حضرت حمزہ کی حضرت عبد المطلب کی اور حضرت عبداللہ کی شادی 1 دن ہوئی تھی. ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے. ہاں مگر جی. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو کہ حضرت محمد کے مرنے سے 212 سال بعد لکھی گئی ہے. یہ باتیں کہیں تاریخ میں آتی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ لکھنے والوں کی بیوقوفی ہے. وہ کہیں بھی یہ بات کی طرف اشارہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ حضرت محمد اپنے باپ کی اولاد نہیں تھے. اصل میں تاریخ لکھنے والے کہیں بھی یہ بات کا اشارہ نہیں دینا چاہتے تھے. اور اس بات کو میں کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ کہیں بھی مسلمان کسی بھی وقت ایک کانسپریسی تھیوری کے طور پہ بھی, پرانے مسلمان بھی اس بات کو مانتے تھے کہ حضرت محمد اپنے باپ کی اولاد نہیں مانتے تھے, نہیں مانتے تھے. نہیں مانتے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اصل میں یہ اس کو کہتے ہیں پیتھیٹک پروپیگنڈا. اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہم کریں گے, ہم وہ ساری باتیں کریں گے, عائشہ سے شادی اور باتیں,
मगर हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे जो बातें साबित नहीं होती, क्योंकि हमें अपनी इंटेलेक्चुअल जो ऑनेस्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आपके पास ऐसे लोग हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन होते हैं, वो ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। मुझे पता है आजकल वो क्रिश्चियन जो बंदा है वो इस बात को पॉपुलराइज कर रहा है। तो मसला ये है कि उससे फिर यसू का पूछ लेते हैं ना कि यसू का बाप कौन था, क्योंकि मोहम्मद के बारे में तो शक है ना, यसू के बारे में तो हम यकीन से फिर कह सकते हैं कि बीबी मरियम का किसी के साथ कुछ रहा होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं फिर भाई, फिर अगर आपने घटिया बातें करनी है तो फिर आपके यसू के बारे में कोई 100 बार कर सकता है। सही ठीक है, ठीक। तो आपको ऐसी बातें करने की जरूरत क्या है भाई? जो बात उनकी साबित होती है, हजरत मोहम्मद पे जो क्रिटिसिज्म बनता है 100 बार करो, जो नहीं बनता अगर आप वो करोगे तो यार फिर मैं तो आपके साथ खड़ा नहीं होता। फिर पहले अपने यसू का ये साबित करो कि वो नहीं था। कहने वाले तो फिर यसू के बारे में बहुत बातें करते हैं ना, बिल्कुल, फिर तो और वहां पे तो बातें वैलिड बनती है, वहां पे तो बातें वैलिड बनती है ना, वहां पे तो फिर वैलिड बनती है। सही कह रहे हैं आप। तो फिर आप ऐसे ही हमें मोहम्मद के ऊपर आप ऐसी बातें साबित कर रहे हैं, तो फिर जीसस पे भी करो, पहले जीसस की कर लो, फिर मोहम्मद की कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम क्यों माने कि जीसस खुदा का बेटा था? हम भी मानते हैं किसी और का था। ठीक है, जब आप ये मानने को तैयार नहीं कि मोहम्मद अब्दुल्ला का बेटा था, तो चले फिर हम जीसस भी बात कर लेते हैं 4 मिनट कि हाँ भाई वो भी खुदा का नहीं था, किसी और का था। ठीक है, ठीक। अच्छा गालिब भाई, लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था तो पता नहीं इंटरनेट को मसला हो गया था, तो मैं कुछ अच्छा, मेरे ख्याल एक सेकंड होल्ड करें। अमित एक बार बता दो कि आप ही हो अमित? हाँ जी, मैं ही हूँ गालिब भाई। नमस्कार, जय भीम आपको और सभी देखने वालों को। हाँ जी, नमस्ते, जय भीम अमित। अच्छा जी मोमिन खान। जी, तो वो पिछली बार सवाल कर रहा था, वो उसमें सबसे अच्छा मैं कुछ और तरीके से जरा कुछ चीजों को देखता और सोचता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो हमारे पास आया हम उसको सारे का सारा ना सच मान लेते हैं, हम उस पर सवाल नहीं करते, लेकिन उनको सच मानने की वजह से जो कुछ सवालात मेरे ज़हन में उभरते हैं, मैं सोचता हूँ कि वो आपके सामने भी रखूं और जो आपको देखने वाले हैं उनके बारे में वो भी इसके बारे में सोचें। जी पहले वो ये है कि जी अल्लाह ताला ने ये सारा कुछ निज़ाम बनाया, कायनात बनाई, ज़मीन, चांद, आसमान, ये सारा कुछ, उसके बाद इंसान को पैदा किया और फिर एक दिन ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जो है हिसाब किताब के नतीजे में जन्नत में चले जाएंगे और कुछ दोज़ख में चले जाएंगे। ठीक है, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब सवाल यह है कि अब अल्लाह क्या करेगा? मक्खियां मारेगा बैठ के, बल्कि मक्खियां भी नहीं होंगी। तो अब एक दूसरा सवाल है, वो बिल्कुल सेम ही है लेकिन थोड़ी सी एक्सटेंशन है। वो ये है कि जब जो लोग जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे, तो जन्नत वालों को देख के तो अल्लाह ताला खुश होगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब जो जहन्नम वाले हैं उनको देख के अल्लाह ताला क्या महसूस करेगा? वो खुश होगा या कि वो उसके ऊपर अफसोस उसको होगा? अगर तो वो खुश होगा तो फिर वो जो बात कही जाती है कि अल्लाह अपने बंदों से पता नहीं कितनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो खैर दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक माँ के बारे में तो बहरहाल सच साबित, वो तो हदीस भी है कि उसमें उन्होंने कहा था कि हाँ करता है। तो मैं नहीं समझता कि एक माँ भी जो है वो अपने बच्चे से कोई इतनी नफरत कर सकती है, चाहे उसने अपनी माँ का कत्ल भी क्यों ना कर दिया हो, कि वो उसके सामने बार बार जिंदा हो रहा हो, मर रहा हो, फिर जिंदा हो रहा हो, फिर मर रहा हो, और वो जो भी सारी दोज़ख की सूरत हाल है उसमें दिखाई गई है वो उसके साथ हो। तो ये वाली बात जो है वो उसमें फिट नहीं बैठती। और दूसरा ये है कि अगर वो अफसोस उसको होगा इस तरह का देख, तो क्या ये इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए अपने अफसोस का बंदोबस्त खुद ही कर लिया? ये मेरा उसमें दूसरा सवाल था। तीसरा उसमें ये सवाल है जी, असल मसला ये है कि अल्लाह का जो कैरेक्टर हमारे सामने इधर से उठ के सामने आता है वो ये है कि अल्लाह तो एक बहुत ही घटिया किस्म का शख्स है, क्योंकि जिसको लोगों को आग में जलाने के बाद भी उसकी नफरत की तस्कीन नहीं होती। असल में जिनको वो आग में जला रहा है, जिंदगी कितनी 80 साल की, जलाएगा वो हजारों साल तक, कभी निकालेगा ही नहीं आग से। एक बात है कि आपको मुझे कोई कत्ल कर दे, ठीक है, और क़यामत वाले दिन वो मुझे मिल जाए, तो मेरा बदला उससे क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? ज्यादा ये ना तो आपके सामने कत्ल हो जाए, ये होना चाहिए। यहाँ जितनी मेरे बच्चों को तकलीफ हुई, मैं कत्ल हो गया तो उसको हो जाए। अब मैं क्या ये चाहूंगा कि वो हजारों साल तक या वो हमेशा के लिए आग में जलता रहे? मेरा ख्याल है अगर आप उस वक्त खुद भी सामने मौजूद हो तो शायद ये आप देख भी ना सकें। मेरे ख्याल में तो अगर हम लोगों को ये पता होगा जो इसने मुझे कत्ल किया था वो एक टेम्पररी लाइफ में कत्ल किया था, तो मैं तो वैसे ही माफ कर दूं। ठीक है, मैं तो बदला लेने की कोशिश भी ना करूं, मैं तो कहूँ यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा ही हूं ना, तूने मारा था, मैं जिंदा हूं, चल जा यार मौजा कर। ठीक है,
सिंपल सी बात है, खुदा की तो हम बात में करेंगे, मगर खुदा हमें किस चीज की सजा देता है हमेशा के लिए? आपको पता इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क। अब मुझे बताएं कि शिर्क जो गुनाह है, ये कोई लॉजिकल गुनाह है वैसे? मतलब अल्लाह को ये तकलीफ हो रही है कि इन्होंने एक घोड़े की जो बुत खुद बनाया है उसको ये पूज रहे हैं, मुझे नहीं पूज रहे। अल्लाह तो ऐसे जैसे कोई सौतन नहीं होती कि आज मेरे पास सोने क्यों नहीं आया, और सौतन को बड़ी और मैं मैं औरतों के बारे में ऐसी एग्जांपल नहीं देना चाह रहा, मगर मेरे जहन में कोई और एग्जांपल इस टाइम समझाने के लिए आई नहीं है। और वो भी सौतनों को इसलिए जलन होती है क्योंकि मर्दों की बेगैरती की वजह से कि वो 4 शादियां कर लेते हैं। ठीक है, मैं उसको नहीं कसूरवार ठहरा रहा, ठीक है, तो उसको जलन होती है कि आज ये दूसरी के पास जाके सो गया, वो उसकी वैलिड जलन है, मैं उसे गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, वो उसको जलन होती है। तो अल्लाह तो बिल्कुल ऐसी बात इस तरह से एक्ट कर रहा है। हाँ बिल्कुल, वो यही मैं सवाल रख रहा था कि जो सुनने मतलब वाले हैं वो भी अगर एक बात है कि मुझे कोई बंदा हो, वो कहे कि मैं जो हूं, वो मुझे आके कहे कि तू गालिब कमाल है, ठीक है, नहीं मगर मैं तुझे नहीं मानता, एक और गालिब कमाल है जो कि चांद पे रहता है, मैं उसको मानता हूँ। अब मुझे पता है कि वो गालिब कमाल है ही नहीं है, तो मुझे गुस्सा करने की जरूरत क्या है? इधर मसला यह है कि अल्लाह एक तरफ ये कहता है कि सारे शिर्क का जो गुनाह है ना, उसमें इस्लाम की सारी हकीकत छुपी पड़ी है। कैसे? अल्लाह को दर्द क्यों हो रहा है? पहले अल्लाह कहता है कि मेरे अलावा कोई मबूद नहीं है, मेरे अलावा कोई गॉड है ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ अल्लाह क्या करता है, उसको इतनी दर्द होती है कि तुम मेरे अलावा किसी खुदा को मान रहे हो या मेरे साथ कोई शरीक ठहरा रहे हो, हालांकि कोई है ही नहीं है, मगर अल्लाह को दर्द बड़ा हो रहा है। तो अल्लाह की ये जलन खुद ये साबित करती है कि ओहो, इसका मतलब है कि यहाँ तो दूसरे खुदा हैं या अल्लाह पागल है। ठीक है, तो शिर्क जो है ये साबित करता है कि अल्लाह पागल है, अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। या दूसरी सूरत में कि दूसरे देवता हैं जिनसे अल्लाह को बड़ी जलन होती है, क्यों हो वो बड़े हो रहे हैं क्योंकि लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और एक बात है कि कुरान में ये जलन बार बार सामने आती है। हाँ, तो मैंने जो आपसे बात बताई है वो यही है कि अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वाकई दूसरे माबूद मौजूद हैं, इसीलिए अल्लाह को इतना दर्द होता है, बस ये बात है। ठीक है। अच्छा गालिब, तीसरा सवाल भी मेरा इसी से मुतल्लिक ही है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे ज़हन में अब तीसरे को आप शॉर्ट रखिएगा ताकि हम आगे भी जाएं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट। हाँ, उसमें यह है कि वो भी सवाल यही सारा बुनियादी यही है, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सटेंशन ये है कि ये कहा जाता है कि अल्लाह हमेशा से है और वो हमेशा ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने दोनों हाथ फैला लें दाएं बाएं और एक तरफ को पास कर लें, एक तरफ को फ्यूचर कर लें, तो इन्फिनिटी है। ठीक है, और उसमें ये जो थोड़ा सा वक्त है ये जिसमें हम अभी गुजर रहे हैं, ये एक मेरे ख्याल में अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी को रख दिया जाए तो इस पूरे के पूरे अरसे को इसके अंदर देखा जाए तो ये एक विद इन ब्लिंक ऑफ आई भी नहीं बनता। क्या ये बात दुरुस्त है ना? हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, टाइम तो बहुत कम है। हाँ जी, बिल्कुल कम है। जब दोनों तरफ इन्फिनिटी है तो इस विद इन ब्लिंक ऑफ आई भी अगर हम इसको तस्वुर कर लें तो ये काम करने के लिए भी अल्लाह ताला से नहीं बैठा गया आराम से, वो बोर हो रहा था और उसने ये सारे का सारा बना दिया, हर चीज जो है। तो एक जब ये आंख झपकने के बाद खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? यही तो बात है ना कि फिर अल्लाह क्या करेगा इसके बाद, क्योंकि मसला हमारा तो नहीं है, मसला तो उसका है। तो वो बेचारा बोर ही होगा बैठ के। तो अगर वो सारे का सारा दोबारा यही से सिलसिला शुरू करेगा जो पहले से है, तो इसका मतलब है वो पीछे भी सारा कुछ करता रहे। ठीक है ना, वो पीछे तो उसके पहले भी तो ये भी होता रहा होगा ना, तो उसके हमें कुछ आसार वगैरह तो नहीं मिलते। ये कुछ समझ नहीं आती ये बात ये आई कि ये सिर्फ एक विद इन ब्लिंक ऑफ आई के लिए सारा। मगर मुसलमान ये भी मानते हैं कि इससे पहले भी दुनियाएं थी, इससे पहले भी चीजें थी, मानते हैं वो ये बातें। तो ये सारे कुछ किस्म के मुसलमान, सब नहीं मानते, कुछ सब नहीं मानते। ठीक है, तो ये भी मैं सोच रहा होता था कि ये अगर ये सारा कुछ इसी तरह से चलता है तो फिर अगर आइंदा भी ऐसा होगा तो फिर पहले भी ऐसा होता रहा है, तो इसका हमें कुछ किसी जगह पे मिलता नहीं है किसी भी किताब में कि पहले भी अल्लाह ऐसे करता रहा और बाद में भी अल्लाह ऐसा करता रहेगा। चलें, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ठीक है, चलें, सही, ठीक है, ओके, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।